Yes. हम्म हम्म, ठीक है, देखेंगे, फिर से चेक करेंगे. So diffusion, I told you, diffusion means intermixing of gas. Okay. Diffusion also occurs in solids and liquids, but at a slower rate. So intermixing of gas is diffusion. And what is the criteria for diffusion? So diffusion means the gas will diffuse through that medium where pressure is low. Gas flows from high pressure to low pressure. Is it clear? So since gas flow from high pressure to low pressure, gas always try to diffuse in order to maintain pressure constant, in order to make the equality of pressure. So this is the criteria for diffusion. So diffusion may occur in vacuum, diffusion may occur in air. So two type of diffusion, we can say diffusion occur in vacuum. So that is ideal diffusion, means it is mixing in vacuum. There is nothing is there. So air is flown to vacuum, it is mixing, and diffusion in air. So that is also another type of diffusion. Where diffusion will be faster? Diffusion in vacuum will be faster or diffusion in air is faster? Tell me. Yes, diffusion in vacuum is faster because in vacuum pressure is zero. So in vacuum pressure is zero means the difference in pressure will be high. In air pressure is 1 atmosphere and difference in pressure is P minus 1. But in vacuum difference in pressure is P minus 0. So diffusion is studied, ideal case of diffusion is studied by uh, keeping in vacuum. Okay. Otherwise diffusion in air also we can study. So when diffusion is occurring, the mixing of gas and which gas will be diffused faster. So it is found that lighter gas diffuse faster. Yesterday I gave you one example where the distance traveled by heavier gases will be less and distance traveled by lighter gases will be more. So this shows that lighter gases diffuse faster than heavier gases. Clear? So in diffusion, Graham's one scientist have done many studies and the diffusion is given as per the Graham's law. So we can write Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. So Graham's has told rate of diffusion we can compare with molecular masses and the rate of diffusion is inversely proportional to its molecular masses. This is found by experiment and it is square root of molecular masses. So rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular masses. But what we do, Pm is equal to dRT. We know that Pm is equal to density into R into T. So suppose we keep our pressure and temperature constant, means we are studying many gases diffusion, means diffusion of many gases at constant P and T. If P and T are constant, then we can say M is also proportional to D. So if it is inversely proportional to molar mass and molar mass is directly proportional to density, we can also say the rate of diffusion is inversely proportional to density. Okay? And this is square root of density. So rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular masses and also square root of density. Now suppose you this is or this is end नहीं है, ठीक है, end होगा तो दोनों का proportionality में multiply होगा, means molar mass you take or density you take.
then you can compare rate of diffusion is directly proportional to partial pressure of the gases diffused divided by square root of molar masses. The rate of diffusion is directly proportional to partial pressure of the gases. So P is equal to partial pressure of the gases diffused. Partial pressure of the gas diffused. Partial pressure means suppose you consider two gases are diffused. One pressure is high, one pressure is low. But both gases are of same kind, means molar mass same. If molar mass same, it is found that the gas which is diffused with high pressure will have more rate of diffusion. Suppose ये गैस यहाँ से आया, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, और एक गैस आ रहा सेम मोलर मास, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है. इसका प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर, मतलब हाई प्रेशर से निकल रहा है. इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर. एक कॉटन हम रख दिए, इसमें 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर गैस यहाँ रख दिए, यहाँ पे रख दिए 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर. तो ये डिफ्यूजन एयर में हो रहा है. ठीक है, डिफ्यूजन हम लोग दो टाइप का स्टडी कर सकते हैं, एयर में स्टडी कर सकते हैं या वैक्यूम रख के डिफ्यूजन स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफ्यूजन एयर में हो रहा है, ये भी एयर में हो रहा है. एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसमें भी एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. अब बताओ दोनों में किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा, द फॉर्मर और द लेटर? हाँ, 5 एटीएम जिसका है वो हाई स्पीड में आ रहा है. पानी देखो पाइप से जो हाई स्पीड में आ रहा है, ठीक है, और पानी स्लो में आ रहा है. तो किस केस में पानी का फोर्स ज्यादा होगा, पानी का रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इन 5 एटमॉस्फेयर. मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, अगर प्रेशर हमारा सेम है तो हम मोलर मास देखेंगे. अगर मोलर मास भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा, इक्वल होगा. क्लियर? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड्स अपॉन these two factors, that is partial pressure of the gas directly proportional and molar mass of the gas inversely proportional and square root of that. ओके, दिस इज और मीन्स मोलर मास अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी दिया है तो ये लोगे, लेकिन डेंसिटी जब देगा तब ये एज्यूम करना है ये स्टडी हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में. डिफ्यूजन हमेशा हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर में स्टडी करते हैं. अगर दो गैस का डिफ्यूजन ले रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं रूम टेम्परेचर में या कोई गिवन टेम्परेचर में कांस्टेंट है, उसको स्टडी करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन. ओके, टोटल प्रेशर लेंगे, क्यों वैक्यूम का प्रेशर 0 हो जाएगा. इसमें डेल्टा पी कितना होगा बोलो, इसमें डेल्टा पी 4 एटमॉस्फेयर होगा, इसमें डेल्टा पी कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर होगा. अगर इस सेम गैस को हम 2 एटमॉस्फेयर का गैस को हम वैक्यूम में स्टडी किए, ठीक है, तो ये 2 एटीएम का प्रेशर ले रहे हैं, तो इसमें ये निकलेगा, इसमें तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये आराम से जोर से निकलेगा. तो इसमें डेल्टा पी हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर. ओके, जो भी डिफ्यूजन स्टडी करो उसको एक कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी करना है. मतलब सबको वैक्यूम में स्टडी करो या सबको एयर में स्टडी करो, लेकिन कुछ को एयर में कुछ को वैक्यूम में करके कंपैरिजन करना गलत होगा. ओके, तो आइडियल केस ऑफ डिफ्यूजन क्या करते हैं हम लोग, वैक्यूम में स्टडी करते हैं. जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसको हम लोग वैक्यूम में रख देते हैं, जो गैस को वैक्यूम में कितना फास्ट डिफ्यूज हो रहा है उसको स्टडी करते हैं. दैट इज द आइडियल केस. ओके, तो ग्राहम ने जो एक्सपेरिमेंट से पाए ये फॉर्मूला पाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इस फॉर्मूला से आता है. तो अगर हम दो गैस को कंपेयर करेंगे, मान लो R1 by R2, R1 is rate of diffusion of gas 1, R2 is rate of diffusion of gas 2. तो R1 by R2 क्या होगा, फॉर्मूला से बताओ. और प्रेशर भी डिफरेंट है, तो P1 by P2 एंड अंडर रूट ऑफ M2 by M1. अगर दोनों का प्रेशर सेम है, अगर बाई चांस P1 इज इक्वल टू P2, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कोई बात नहीं है M2 by M1.
कभी कभी क्वेश्चन में प्रेशर देता नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूम दो बोथ प्रेशर सेम, तो हम लोग ऐसे ले लेंगे। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, इससे हम कंपेयर करेंगे। दिस इज थियोरेटिकल कंपैरिजन, दिस इज व्हाट थियोरेटिकल कंपैरिजन। लेकिन हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब क्या है, ये सब लिख लिए तो हैव यू रिटन ऑल दिस? So suppose we compare, I'll send the screenshot also, don't worry. Suppose you compare the rate of diffusion with the experimental value, means practically कैसे लैब में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा फॉर्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टडी के लिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन is equal to volume of gas diffused, volume of gas diffused per unit time interval। मतलब 1 सेकेंड में कितना गैस डिफ्यूज हुआ, या 1 मिनट में कितना गैस डिफ्यूज हो रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml डिफ्यूज हो रहा है, कितना ml ऑफ गैस डिफ्यूज हो रहा है 1 सेकेंड में। तो इसको हम लोग इस टाइप का स्टडी कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम निकला, और इसको हम स्टडी कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितना मोल गैस डिफ्यूज हुआ, तो याद रखो फर्स्ट केस में जो मैग्नीट्यूड आएगा सेकेंड केस में सेम मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल हमेशा सेम नहीं होता है। ओके, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब कितना डिस्टेंस, हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम देखेंगे। तो अगर कलर्ड गैस है तो हमें दिखाई देगा, हम लोग कोई नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब लेंगे, नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब में हम देखेंगे 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको देखते हुए हम भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बाकियों के साथ सेम नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें से कोई भी एक करो, रेट ऑफ डिफ्यूजन कोई भी एक स्टडी करो। हाँ हाँ, उसको एक दूसरे से, ना ना, एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम हमें दिया है, तो उसका नंबर ऑफ मोल क्या नहीं निकाल सकते, पीवी को एनआरटी करके। हाँ, तो डिस्टेंस दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिए, डिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आया, वॉल्यूम आया, तो उसी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर ऐसे कन्वर्सन कर देंगे तो सब सेम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो प्रेशर ड्रॉप, नहीं तो डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। डिक्रीज इन प्रेशर किसका होगा, जो भाल्व है, जो गैस कंटेनर है, तो गैस कंटेनर का जो भाल्व को ओपन कर दिए, उस भाल्व में जो प्रेशर आ रहा, इनिशियली प्रेशर ज्यादा था, फाइनल प्रेशर कम हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, अरे जितना डिक्रीज हुआ वही गैस तो बाहर आ गया। तो जितना रेट में आ रहा है, कितना रेट में गैस आ रहा है, तो डिक्रीज इन प्रेशर
बाय टाइम इंटरवल। इसमें हम लोग जहां से सोर्स से हम स्टडी करते हैं, ये सोर्स माने जहां से गैस निकला वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, डिक्रीज इन प्रेशर गैस सोर्स, जो गैस जहां से निकलेगा उसका प्रेशर, मतलब जो सोर्स से निकल रहा है उसमें प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ बाय टाइम। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, 4 लेंगे क्योंकि सोर्स तो 5 है ना। तो अ, अगर कोई सिलेंडर है, यहाँ से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एक सिलेंडर है वहां से गैस निकल रहा है, तो कितना रेट में गैस निकल रहा है, जो गैस निकला हम तो उसका पीछे दौड़ दौड़ के कितना कहाँ गया गैस, उसको कलेक्ट करके फिर उसका वॉल्यूम, उसका मोल, ये स्टडी करना मुश्किल है हमारे लिए। गैस तो लीक हो गया, वो भाग गया कहाँ इधर उधर, है कि नहीं। उसको हम जाके कहाँ कहाँ ढूंढे, उसको कलेक्ट करे करना मुश्किल है। हम तो सिलेंडर के पास है, सिलेंडर का प्रेशर, उसका जो वाल्व में जो मैनोमीटर कनेक्ट करके उसका प्रेशर स्टडी कर सकते हैं। पहले प्रेशर था, मान लो पहले प्रेशर था 20 एटमोस्फियर, ठीक है, और 10 मिनट के बाद उसका प्रेशर हो गया 15 एटमोस्फियर। अब यहाँ पे तो प्रेशर उसका कम हो गया, तो अब गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, जो गैस डिफ्यूज हुआ उसको अगर हम क्लोज कंटेनर में रख देंगे, हम लोग जानते थे गैस लीक होगा, उसको जो गैस निकला उसको कलेक्ट करके रखे, फिर कितना वॉल्यूम है, तो पहले एयर कितना था, ये सब स्टडी करके निकालेंगे तब अलग बात है। हम अगर उसको करना भूल गए, मतलब जो गैस निकल रहा है उसको कलेक्ट करना भूल गए, जो गैस निकल रहा है वो भाग गया कहीं इधर उधर भटक रहा है, चला गया मार्केट में, चला गया स्कूल में, चला गया, सब जगह भटक रहा है, कहाँ कहाँ ढूंढे हम, वो गैस को हम ढूंढ नहीं सकते। हाँ, तो ये गैस सिलेंडर का वॉल्यूम करके निकाल देंगे। गैस सिलेंडर का पहले प्रेशर था 20 एटमोस्फियर, फिर हो गया 10 एटमोस्फियर, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है कि नहीं। इनडायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन करके एक में से कोई कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्टली इस टर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई कितना टाइम में डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, इससे भी हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, दो गैस है, दो गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, तो दोनों का रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा। ओके, तो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन देखना है। रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लिख सकते हैं R1/R2। ओके, तो R1/R2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1/P2 √M2/M1, यही लिख सकते हैं। ये तो थ्योरी बताए, ग्राम्स ने बताया, लेकिन हम लोग लेबोरेटरी में इसका जो कंपैरिजन कैसे करें, तो R1 क्या होगा, जो गैस डिफ्यूज होगा V1/T1, फिर V2/T2। इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों का रेशियो N1/T1 और N2/T2 के साथ समान होगा। तो N1T1 क्या है, ये है N, ये है T, नंबर ऑफ मोल्स, ये है V और ये है T, वॉल्यूम। तो गैस सोर्स, मतलब गैस जहां सोर्स है वहां पे डिक्रीज इन प्रेशर देखना है, ठीक है। x1, x क्या है, डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x1/T1 x2/T2। तो ये जो रेशियो आएगा ये रेशियो के साथ इक्वल होगा हमेशा, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और ये रेशियो के साथ समान होगा। मतलब हाँ, सही बोल रहे हो, रेशियो दोनों का रिलेटिव रेट का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। और ये है फाइनल, हमारा ये जो है फाइनल फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो डिफ्यूजन को हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं और थ्योरेटिकली मोलर मास से हम लोग ऐसे रिलेट कराते हैं। तो डिफ्यूजन के बाद और एक चीज हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। उसको बोलते हैं इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन डिफ्यूजन का ही छोटा भाई है। ओके, ये डिफ्यूजन का ही फिनोमिनन है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है। द डिफ्यूजन that occurs the diffusion that occurs from a from a from a pinhole और पिनहोल को ओरिफाइस बोलते हैं और इसको नोजल नोजल भी बोलते हैं। When there is a difference in pressure, when there is a difference in pressure, ओके। तो पिनहोल और और ओरिफाइस और नोजल मतलब क्या है? एक गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर हम लोग उसमें से गैस फिलअप करके लिए थे। तो गैस सिलेंडर जो लिए थे उसमें से छोटा सा छेदा था, मतलब पिन होल था। तो जब जहां से गैस खरीद के हम लिए, घर जाते जाते वहां से गैस क्या होगा? लीक होगा कि नहीं, बोलो? गैस लीक हो रहा। तो ये जो गैस लीक हो रहा है, ये पिन होल में कितना रेट में लीक हो रहा है, उसका स्टडी अगर करते हैं, वो स्टडी होगा इफ्यूजन। वो स्टडी होगा इफ्यूजन। इस पॉइंट पे जितना रेट में निकल रहा है वो होगा इफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का ही पार्ट है। लेकिन डिफ्यूजन में नॉर्मली क्या होता है, ये ओपन एयर में मिक्स होगा। डिफ्यूजन ओपन एयर में मिक्स होगा, तो हम लोग ले लेते हैं सराउंडिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है? या वैक्यूम में मिक्स होगा, सराउंडिंग प्रेशर 0, ठीक है? और अगर दो गैस मिक्स हो रहा है तो एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा डिफ्यूजन में। और इफ्यूजन में क्या होगा, उसका प्रेशर अंदर का बहुत ज्यादा होगा। तो अंदर का ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे जितना रेट में निकलेगा वो ही है इफ्यूजन। ओके। डिफ्यूजन में क्या होगा, गैस मिक्स होगा ओपनली। इसमें गैस ओपनली मिक्स नहीं होगा, ये पिन होल से जो निकलेगा वही है इफ्यूजन। तो हाँ, जब इफ्यूजन हम स्टडी करते हैं तो ये हम लोग वैक्यूम में उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये वैक्यूम में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका सराउंडिंग प्रेशर ले लेते हैं 0। ये इफ्यूजन का आइडियल स्टडी है। लेकिन डिफ्यूजन में नेसेसरी नहीं है कि सराउंडिंग प्रेशर 0 लो। डिफ्यूजन में ऐसे ही रख दो, एक कॉटन में गैस लगा के रख दो, वो डिफ्यूज हो रहा है, मिक्स हो रहा है एयर के साथ। तो जब एयर के साथ मिक्स हो रहा है तो एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। हम सोर्स में उसका डिफ्यूजन नहीं देख रहे हैं, हम डिफ्यूजन देख रहे हैं थ्रू आउट मीडियम। डिफ्यूजन जब हम देख रहे हैं,
डिफ्यूजन एयर में कैसे मिक्स हो रहा है, मतलब एयर के साथ जो मिक्स हो रहा है थ्रू आउट देख रहे हैं। लेकिन इफ्यूजन क्या है, उस पॉइंट पे देखना है, मतलब जहां से गैस लीक हो रहा है उस पॉइंट में कितना रेट में निकल रहा है। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि उस पॉइंट में जो गैस निकलेगा उसका रेट और सराउंडिंग में जो मिक्स होगा उसका रेट सेम नहीं होगा, अलग होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टडी करेंगे वही है इफ्यूजन। और ये इफ्यूजन जो होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन किसका ऊपर डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड करेगा नंबर वन A0। A0 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, ये जो होल है जहां से गैस निकल रहा है उसका एरिया कितना होगा। ओके, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर होल बड़ा है तो ज्यादा गैस निकलेगा, ये ऑब्वियस बात है। होल अगर छोटा है तो कम गैस निकलेगा। तो ये जो पिन होल, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हम डिफ्यूजन को यहां पे स्टडी कर रहे हैं। डिफ्यूजन को क्या करते हैं, गैस निकल गया ना, तो ये जो एयर के साथ मिक्स हो रहा है, वो जो मिक्स हो रहा है यहां पे हम स्टडी करते हैं। हम स्टडी नहीं करते हैं जहां से निकल रहा है, हम एयर के साथ स्टडी करते हैं। तो इसीलिए डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग है। लेकिन इफ्यूजन क्या है, जहां से निकल रहा है वहां पे स्टडी करते हैं। तो इसीलिए इफ्यूजन का जो भी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन और उसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर उसका अंदर जो पिन होल है वो स्क्वायर टाइप का है, ट्राइंगल टाइप का है, सर्कुलर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड है, ये इफ्यूजन डिपेंड करेगा पी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of the gas present inside, मतलब सिलेंडर का अंदर जो पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, हाँ, सिलेंडर का अंदर जो भी गैस होगा उसका पार्शियल प्रेशर, जितने भी गैस होंगे सबका अलग अलग आएगा। मान लो 3 गैस है, तीनों का पार्शियल प्रेशर अलग आएगा। तो जिसका, हाँ, एक ही गैस है तो उसका जो प्रेशर होगा वही पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर इसीलिए लिख रहे हैं कि जब मिक्सचर होगा तब क्या होगा, तब तो हम टोटल प्रेशर नहीं लेंगे ना। तब क्या होगा, जितने भी गैस रहेंगे उनके बीच में कंपटीशन होगा। सपोज हमारे पास मीथेन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सो सब गैस एक साथ नहीं निकलेगा, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलना चाहेगा, मीथेन भी निकलना चाहेगा और ऑक्सीजन भी निकलना चाहेगा। लेकिन जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो गैस जल्दी निकलना चाहेगा क्योंकि वो होल पे ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन ये होता है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो प्रोपोर्शनल टू P माइनस P0 होता है। तो P0 क्या है, P0 है आउटसाइड प्रेशर। P0 क्या है, आउटसाइड प्रेशर। हाँ, अगर हम वैक्यूम लेंगे तो जीरो होगा। तो सपोज हम वैक्यूम लिए तो जीरो होगा। लेकिन हम ये फिक्स कर दिए कि जब भी इफ्यूजन स्टडी करेंगे इसको वैक्यूम में कनेक्ट कर दो। तो जहां से गैस लीक हो रहा है तुरंत वैक्यूम लाओ, उसमें कनेक्ट कर दो और देखो कितना इफ्यूजन हो रहा है, तब जाके स्टडी करो। ये फिक्स कर दिया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। अगर वैक्यूम हमें नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टडी एटमॉस्फेयर में करेंगे। तब इसका जो वैल्यू होगा P माइनस P0 हो जाएगा। P0 है आउटसाइड प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। ठीक है, और जैसे कि ग्राम्स ने बताया वो होगा ही स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास।
हाँ, पिन होल का भी तो कुछ तो एरिया रहेगा ना, पिन होल में भी उसका रेंज होता है ना, छोटा पिन होल, बड़ा पिन होल। ऐसे कोई भी होल करेंगे तो वो बड़ा छोटा तो रिलेटिव होता है ना। तो आइडियल कुछ नहीं है, कोई कोई कुछ आइडियल नहीं है। उसका एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है बस, खत्म। हाँ, जब बोलने को बोलेंगे होल छोटा रहेगा तो गैस लीक होगा, तो ये स्टडी ठीक से होगा। ओके, ये बोलेंगे, बोल डेफिनेशन में ऐसे लिखा है। तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है कि छोटा होल होगा बड़ा होल होगा। तो इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन ही लेना है, जितना भी रहेगा उतना लेना है। एरिया अगर सेम है तो इफ्यूजन सेम होगा, अगर एरिया डिफरेंट है तो इफ्यूजन डिफरेंट होगा। सपोज गैस एक जगह से एरिया ज़्यादा है, डबल हो गया, तो रेट भी डबल हो जाएगा, इस टाइप का होगा। यस। हाँ हाँ, तो इफ्यूजन, इफ्यूजन दैट इज द एग्जाम्पल, इफ्यूजन बेस्ट एग्जाम्पल। उससे धीरे धीरे गैस निकलता है, और सुबह जाने से उसका जो वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे गैस निकलता है। जितना टाइटली बांध लो तो एक दिन नहीं होगा, 2-3 दिन में गैस कम हो जाएगा, निकल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको इलास्टिसिटी रहता है ना। हम जितना टाइटली बांधने से भी उसका बीच में थोड़ा सा पिन होल हो जाता है, और वहां से गैस निकलने लगता है। तो इसीलिए वहां पे इफ्यूजन होता है। तो इसका रेट कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गैस बलून लेंगे जिसका जिसका लाइट वेट होगा, उसमें इफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर उसमें एयर लेके रखेंगे, एक काम करो, तुम लोग जब बलून खरीदोगे, एक में एयर फील्ड बलून खरीदो, एक में गैस फील्ड बलून खरीदो, और उसको बोलो दोनों को ही टाइट से बांध लो। दोनों को जो आदमी बांधेगा इक्वली टाइट से बांधेगा, तो दोनों बलून ला के घर में रख दो। देखोगे कि जो जो गैस बलून होगा वो नॉर्मली हीलियम का नहीं तो हाइड्रोजन का होता है, या मिक्सचर ऑफ टू होता है। तो गैस बलून जिसका लाइट वेट है, जिसका लाइट वेट होगा, मोलर मास कम होगा, उसका रेट तो ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होगा, वो निकलेगा जल्दी। ठीक है। तो ये था थ्योरी, इफ्यूजन का थ्योरी। हमें इस फॉर्मूला यूज करना है। और एक कॉन्सेप्ट है इफ्यूजन का, उसको बोलते हैं क्या, सेपरेशन फैक्टर और एनरिचमेंट फैक्टर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उसके बाद एनरिचमेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो ये जो, हाँ, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, पहले एक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, 20 cm³ of SO2 gas diffuses, 20 cm³ of SO2 gas diffuses through through a porous plug in 60 seconds. In 60 seconds. Okay. What volume of oxygen gas? What volume of porous plug? Porous plug. PLUG. What volume of O2 will diffuse under similar conditions in 30 seconds? Under similar conditions in 30 seconds. नहीं, 14.14,
तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इफ्यूजन, लाइट कलर लेने से हो। हाँ हाँ, एस एस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2। तो ये तो दिया है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, तो हम कर देंगे वॉल्यूम V1 बाई T1 कर देंगे। तो O2 का क्या करेंगे, V2 बाई T2, ये तो एक्सपेरिमेंटली आएगा, इज इक्वल टू P1 बाई P2 M2 बाई M1। लेकिन क्वेश्चन में पोरस प्लॉग दिया, तो पोरस प्लॉग से डिफ्यूज हो रहा है, मतलब पोरस मतलब बहुत सारा होल है, तो ये इफ्यूजन नहीं है। तो बहुत सारा होल है, तो जब निकलेगा बाहर मिक्स होगा तो उसका प्रेशर सेम हो जाएगा, तो हम इसको M2 बाई M1 ले सकते हैं, क्योंकि P1 P2 सेम है। सेम बोला है क्या? कंडीशन से, हाँ। तो सिमिलर कंडीशन बोला है, सिमिलर कंडीशन मतलब ये लेना है कि दोनों सेम प्रेशर में मिक्स हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मिक्स हो रहा है, ओपन एयर में मिक्स हो रहा है, तो हम M2 बाई M1 ले सकते हैं। इसको सेम करने के लिए आइडेंटिकल कंडीशन बोल रहा है। तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ SO2 डिफ्यूज कितना हुआ, 20। उसका टाइम क्या है, 60 सेकेंड। अब वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा ये तो मालूम नहीं है, इसका टाइम क्या है, 30 सेकेंड। इज इक्वल टू क्या होगा, M2 बाई M1। M2 मतलब ये वाला होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाय SO2 कितना है, 32 प्लस 32 64। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो इसको सॉल्व करो, V2 कितना आ रहा है, ये 30, ये 2, ये 10, ऐसे हो जाएगा। तो 10/V2, V2 इज इक्वल टू 10√2 हो रहा है, 10√2 इज इक्वल टू 14.14। क्लियर है, समझ में आया? तो एक जेई का क्वेश्चन करो, एक जेई में आया था, जेई मेंस में आया था। तो जेई का क्वेश्चन, X ml of H2 effuses through a hole
हाँ, ऑप्शन है। कौन सा सही होगा? तो कौन सा रहा आंसर? हाँ, बी आ रहा है ना? कैसे करना है? रेट ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2। अच्छा, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 जो है वो है x/5। ये x/5 हो रहा है। ओके। द टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस इज स्पेसिफाइड बिलो। तो इसमें तो दिया नहीं है, हम हर ऑप्शन लेके चेक करना है। ठीक है। तो इसका टाइम और उसका वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो फर्स्ट हम देखते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम लेते हैं। तो ये x/10 बोल रहा। तो बी आ रहा ना, x/10 है। तो x/10 है तो 2 आ गया। तो ये दोनों को डिवाइड करने से 2 आ गया। तो 2 आ गया। तो 2 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम बाई हाइड्रोजन। तो मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम कितना होगा? M2/M1 होता है ना, R1/R2 M2/M1 होता है। तो ये 4/2। तो मतलब बोल रहा कि √2 इक्वल्स टू 2। क्या ऑप्शन ए सही है? तो रेट ऑफ इफ्यूजन सब लोग देखो, ध्यान से देखो। रेट ऑफ इफ्यूजन होगा वॉल्यूम गैस डिफ्यूज बाय टाइम। और हीलियम का भी होगा वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम बोल दिया तो एक्स बाय टाइम यहाँ पे दिया है। तो इसके साथ मैच करना है। अगर ये वैल्यू जो आ रहा है, रेट ऑफ इफ्यूजन R1/R2 M2/M1 होगा। तो R1/R2 M2/M1 अगर मैच कर रहा है, सेम आ रहा है तो सही है। इसमें √2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, क्या सही होगा? नहीं होगा, ये गलत होगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 बाई रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 ले लेते हैं। तो वॉल्यूम से कितना आ रहा है? x/5। ये x/5 आ रहा। यहाँ पे x/20 होगा क्योंकि सेम वॉल्यूम बोला है, टाइम 20 बोला है। तो x/20। तो इसको सॉल्व करने से 4 आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है M2/M1 होगा। ये M2/M1। अब अगर M2/M1 भी 4 आ गया मतलब सही है। इसका M2 मतलब O2 कितना है? 32 बाई M1 क्या है? H2 2। 32/2 कितना हो गया? 16 स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब एक्सपेरिमेंट से 4 आ रहा है, थ्योरी से भी 4 आ रहा है। तो थ्योरी हमारा सही है, मतलब बी ऑप्शन करेंगे तो सही आएगा, है कि नहीं? तो ये जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, कोई एक साल में आया था। ठीक है। कंसीडर कर लेंगे जब डिफ्यूजन बोलेगा या इफ्यूजन एट सेम प्रेशर या प्रेशर पार्शियल प्रेशर दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो सेम कंसीडर कर लेंगे। अगर दिया है तो लेना है, नहीं दिया है तो हम आज्यूम करेंगे इफ्यूजन अंडर सिमिलर प्रेशर हो रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? तो उसके बाद और एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करो। 32 ml of H2 gas।
हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 हम लेते हैं डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 लेते हैं। तो ये दोनों लेंगे तो क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम ऑफ गैस H2 डिफ्यूज, H2 का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है? 32। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, VH2/T और VCO2/T इज इक्वल टू MCO2/MH2। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ H2 डिफ्यूज दिया है 32 इन 1 मिनट। ठीक है भाई, 1 मिनट, मिनट पर मिनट दिया है। वॉल्यूम ऑफ CO2 वही पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एक्स ले लेंगे बाई, ये भी 1 मिनट बोल दिया, सेम टाइम दे दिया दोनों का। सही है, बढ़िया है। तो इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2, इसमें दोनों का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो नहीं लेना, इक्वल मान लेना है। मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 44 और हाइड्रोजन का 2। तो मतलब ये 1 1 गया, तो हमारा एक्स आएगा कितना? एक्स इज इक्वल टू ये 22 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 22। तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू। इज दैट क्लियर? सब लोग समझ गए कि नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी। तो किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, यू हैव टू स्पीक आउट बिकॉज आई कैनॉट सी यू। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, टीचर स्टूडेंट का फेस देख के समझ जाता है कि उसको समझ में आया कि नहीं। ठीक है? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगा। अभी जैसा सिचुएशन है ना, अभी कोई नहीं बोल सकता है कौन सा डेट में स्कूल होगा नहीं होगा। कोई बोल रहा था नहीं, नहीं हाँ, तो वो तो 1 महीने से बोल रहा है September 5 को खुलेगा, फिर September 21 को खुलेगा। अभी सुनने को आ रहा है नहीं, अक्टूबर को खुलेगा। हाँ, तो देखते हैं क्या होगा जब भी खुलेगा। मेरे को तो ऑफलाइन अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो इतना टेक टेक सेवी नहीं हूँ ना, टेक्नोलॉजी में मैं बहुत कुछ परफेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं तो मैं टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत सारा चीज और अच्छा से पढ़ा सकता था। ऑफलाइन का हमारा आदत है, सभी टीचर्स का वही आदत है, लेकिन कुछ टीचर्स ऑनलाइन में बढ़िया कर रहे हैं, मतलब उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है ऑनलाइन में। ठीक है? तो जो भी है, अभी देखो सिचुएशन जैसे इम्प्रूव होता है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन में लेता हूं एक। ठीक है? तो जेई एडवांस का ट्राई करोगे ना? जेई एडवांस का क्वेश्चन को डिफिकल्ट मत सोचो। जेई एडवांस क्वेश्चन, हाँ, कुछ क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन चैलेंजिंग है। अच्छा, एवरेज मोलर मास मैंने बताया ना कल।
ये एक्स है, एक्स containing 20 percentage of X. हाँ, under identical condition. एक मिनट, by mole. ये वर्ड ऐड कर दो. द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड मिक्सचर इज डन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. ठीक है, ये ऐड करने से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. एक मिनट में देखता हूँ सर.
आंसर 46.6 दिया है। यस, वो नहीं दिया है। सेम होगा, आइडेंटिकल है ना, वॉल्यूम O2 का वॉल्यूम और मिक्सचर का वॉल्यूम सेम है। यस। हम्म। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। ऐसे नहीं मत करो, ऐसे गलत होगा। हम्म। देखो कैसे करना है। अ, इसमें मिक्सचर रिफ्यूज हो रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिफ्यूज फॉर टाइम। तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज फॉर टाइम, टाइम इसका कितना लगा 234। ये बोल रहा है कि ये डिफ्यूजन आइडेंटिकल कंडीशन में हुआ। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्योर ऑक्सीजन क्या है, आइडेंटिकल कंडीशन सेम वॉल्यूम बाय टाइम है 124। क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा हम लोग ऐसे करते हैं, दोनों का टाइम को सेम करते हैं, वॉल्यूम देखते स्टडी करते हैं, या दोनों का वॉल्यूम को सेम करके टाइम को स्टडी करते हैं। ठीक है। देखो, दो एथलीट के बीच में हम कंपटीशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम रख देते हैं और टाइम मेजर करते हैं, कौन जल्दी पहुंचेगा वो फास्टर रनर है कि नहीं। या ऐसे करते हैं, एक एथलीट बोल रहा है नहीं नहीं मैं उसके साथ नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि दौड़ने का टाइम में वो थोड़ा फिजिकल गेस्चर कर रहा है, उससे मैं कंफ्यूज होकर स्लो दौड़ता हूँ। तो ठीक है, तुम अपना दौड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका क्या कर दिए, ठीक है तुम एक काम करो, तुम रनिंग करो, 1 मिनट के बाद हम डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो 1 मिनट वो रनिंग किया, उसका डिस्टेंस काउंट कर लिए। फिर दूसरा एथलीट को बोले तुम भी रनिंग करो, तुम्हारा हम नोट करेंगे कितना डिस्टेंस जाते हो, टाइम है 1 मिनट। वो भी रनिंग किया, उसका 1 मिनट में डिस्टेंस मेजर किया। तो दोनों का टाइम मेजर सेम रख दिए, तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। या दोनों का डिस्टेंस को सेम रख के टाइम मेजर कर रहे हैं, तो उसका दोनों का रेट ऑफ मूविंग और वेलोसिटी स्टडी किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे वही करते हैं। तो कोई भी डिफ्यूजन स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज देगा वो लैंग्वेज एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है। देखो, अगर एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज है तो कुछ चीज हमें एज्यूम करना है। तो क्या एज्यूम करना है, यहाँ पे आइडेंटिकल कंडीशन बोला है, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अगर टाइम दोनों का डिफरेंट है तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मतलब मिक्सचर और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये एज्यूम करके हमें लेना है, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। क्योंकि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ तो दिया नहीं है, इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन लास्ट में बोल दिया कि ये जो गैस डिफ्यूज होता है आइडेंटिकल कंडीशन में होता है। ठीक है। ये दिया था क्वेश्चन में, लेकिन मैं भूल गया था क्योंकि मैं अपना मेमोरी से क्वेश्चन दिया तो इसलिए ये लास्ट सेंटेंस मैंने लिखना भूल गया, बाद में मैंने लिख दिया। ठीक है। तो इसमें ये एज्यूम करो कि दोनों का वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड विल बी सेम, इक्वल। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज इक्वल तो टाइम डिफरेंट होगा, टाइम डिफरेंट तो ऐसे लिख दो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर बाय एक्सपेरिमेंट वी गॉट दिस। तो उस थ्योरी से हम लोग क्या पाते हैं, ग्राम्स ने जो बताया वो उससे हमें क्या मिलता है, इसका मिक्सचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, दोनों का पार्शियल प्रेशर भी नहीं दिया है, तो अगर पार्शियल प्रेशर देता तो लेते, नहीं दिया मतलब वो आइडेंटिकल कंडीशन में जाएगा, मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है। दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, कितना वॉल्यूम गैस डिफ्यूजर है वो स्टडी कर रहे हैं, और सेम वॉल्यूम गैस का मेजरमेंट टाइम से कर रहे हैं। तो ये दिया है। तो अगर पार्शियल प्रेशर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, इसको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से बोलेंगे। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर,
ठीक है, तो ये है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर करेंगे। तो ये जो चीज है ये थ्योरी से आया। सो दिस इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसका पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर V बाई 234, V बाई 234 डिवाइडेड बाई V बाई 124। तो V कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 124 बाय 234 आएगा। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा कितना है, 32 है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना है वो तो पता नहीं, इज इक्वल टू ये 124 बाय 234। तो इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, तो दोनों को स्क्वायर कर दो। दोनों को स्क्वायर करने से मिक्स, हाँ हाँ एस, तो ये 32 होगा। 32 डिवाइडेड बाय ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये होगा 234, 234 बाई 234, 234 बाई 1। हाँ, तो टोटल कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर एटॉमिक्स। अरे ये भाई 32 से कम आएगा ना। ओ इंटू होगा, इंटू इंटू होगा 234 बाई 124 का स्क्वायर। तो इंटू होगा तो ये 234 124 दिया है। अच्छा, आंसर में शायद गलत होगा। अच्छा अच्छा, ये आंसर में 234 224 लिया है, तो इसलिए आंसर आंसर गलत है। आंसर छोड़ दो, आंसर गलत है। ठीक है, हम जो ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से करेंगे। तो ये आ गया, ये कितना आ रहा है, 11,885 है। 114 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, अननोन गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू 114 ले लो। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, हाँ 0.2 होगा, 20% दिया है, 0.2 कर दो इंटू 32 प्लस ये अगर 0.2 होगा, दोनों मिलके 1 होता है ना मोलर, 0.8 ले लो, ये 0.8। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स वही पूछ रहा है। ओ X20, अच्छा अच्छा उल्टा कर लिए फिर, इसको 8 कर लो, इसको 0.2 कर लो। ठीक है, तो फिर हो जाएगा ना, फिर mx आ जाएगा। mx कितना आ रहा है, 4.2। ठीक है सही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दोनों को सेम लेना है। हाँ हाँ, दोनों एक साथ मिक्सचर, पहला केस में मिक्सचर निकल रहा है, मिक्सचर डिफ्यूज हो रहा है पहला केस में, ये मिक्सचर डिफ्यूजन है। दूसरा केस में ओनली ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, इसमें मिक्सचर O2 और X, इसमें O2 डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है सबको। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वो तो दिया नहीं है ना, नंबर ऑफ मोल तो दिया नहीं है।
क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या है, गैसियस मिक्सचर दोनों O2X जो है उसमें से 20% एक्स है, वो डिफ्यूज कर रहा है 234 सेकेंड में। उसके बाद उसको उसको अलग कर दिया और एक दूसरा कंटेनर में ऑक्सीजन को डिफ्यूज किए। ऑक्सीजन डिफ्यूज 124 सेकेंड में हो रहा है सेम होल में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गया, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन हो रहा है। तो ये आइडेंटिकल कंडीशन में हो रहा है, मतलब ये मिक्सचर डिफ्यूज हो रहा है अलग से, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है अलग से। जब मिक्सचर अलग से डिफ्यूज हो रहा है तो मिक्सचर का रेट क्या होगा, वॉल्यूम बाई 234, इसका होगा वॉल्यूम बाई 124, ऐसे करके लेना है। ठीक है, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे बोला है आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडी हाँ 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 हाँ। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब दोनों का इफ्यूजन में एक चीज डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब दोनों का, हाँ हाँ, दोनों का वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज सेम है, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है। ये आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब है। दोनों में आइडेंटिकल कंडीशन का ये भी मतलब है, दोनों का जो जो होल से निकल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब एक चीज डिफरेंट होगा और बाकी सब सेम होगा। तो एक चीज क्या डिफरेंट होगा, इधर वॉल्यूम डिफरेंट होगा या टाइम डिफरेंट होगा, है कि नहीं। तो यहां पे खाली टाइम डिफरेंट दिया है, बाकी सब आइडेंटिकल कंडीशन है। मतलब क्या लेंगे हम, वॉल्यूम सेम लेंगे, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम लेंगे, दोनों का टेम्परेचर तो सेम लेते ही हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशन मतलब ये इसका मतलब यही दर्शाता है। नहीं, सेम ही है। सिमिलर सिमिलर मतलब दोनों माने एक्चुअली लिटरेचर मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग सेम आज्यूम कर सकते हैं। आइडेंटिकल सिमिलर कंडीशन सेम ले लो। ठीक है, तो और एक जेई एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। तो जेई एडवांस का 1999 में एक क्वेश्चन आया था, बढ़िया 1999 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में लिखता हूं, 57 है ये।
जेनॉन जेनॉन फ्लोराइड कुछ होगा। हाँ। 131। 19। 19। हाँ सही है, XCF6 भी। हम्म। कैसे किए बोलो। हम्म। हम्म। यस यस। हम्म। बस बस सही है, सही। रेट ऑफ N2 बाई रेट ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस को हम लोग मालूम नहीं है, जेनन फ्लोराइड XCFN ले लो। ठीक है, क्योंकि जेनन फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होगा तो जेनन 1 ही होगा ना। XC कितना होगा, जेनन फ्लोराइड ऐसे होता है, XCF2 होता है, XCF4 होता है, XCF6 होता है। ये तीन जेनन फ्लोराइड ही है नेचर में। ठीक है, तो तीनों में से एक आंसर होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ XCFN इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल N2 बाई टाइम, नंबर ऑफ मोल बाई टाइम is P1 by P2
m2/m1, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस, तो 1 मोल दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है 1 दे दिया, डिवाइडेड बाय टाइम इसका कितना दिया 38 सेकेंड। नंबर ऑफ मोल ऑफ अननोन गैस जेनॉन फ्लोराइड, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये 1 मोल, इसका टाइम कितना दिया 57, ओके, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है 0.8, पार्शियल प्रेशर ऑफ अननोन गैस है 1.6, m2/m1 molecular weight of XCF6, तो molecular weight of XCFn मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय m1 मतलब नाइट्रोजन का 28। तो इसको सॉल्व करो और हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ XCFn निकाल दो। तो मोलिकुलर वेट जो आएगा, ये जेनॉन का एटॉमिक वेट होगा 1 × 131, तो मोलिकुलर वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ जेनॉन 131 है, तो मोलिकुलर वेट 1 × 131 प्लस n × 19, तो ये यहाँ पे मोलिकुलर वेट आ गया, यहाँ पुट कर दो, और इसमें n देखो तो 6 आ रहा, n 6 आएगा तो फॉर्मूला होगा XCF6, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसको नियर नियर इंटीजर वैल्यू ले लेना है। हाँ ठीक है, नियरर टू इंटीजर वैल्यू, क्योंकि क्योंकि जानते हो जेनन यही तीनों में से ही करेगा कोई ना कोई, तो जिसका क्लोज वैल्यू आएगा वही लेना है, और क्या। हमारा एक्सपेरिमेंटल तो 100% करेक्ट नहीं होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है, कोई भी 100% करेक्ट एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता। इवन साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज लेता है, वो लोग भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गलतियां आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है। तो इसीलिए जो लेबोरेटरी में लिखा जाता है, एरर लेस देन 8% इज एक्सेप्टेड, ओके, error less than 8% is accepted, more than 8% means it is rejected, ओके। तो और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करने से दिल खुश हो जाएगा, एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये एडवांस कहीं पे नहीं आया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सिनेमा थिएटर of 201 equidistant rows, 201 equidistant rows are there. One magician PC Sarkar, famous international magician, introduces laughing gas laughing gas from the screen side and tear gas from entrance side, entrance opposite to screen है, ठीक है, entrance side simultaneously, एक साथ। find the row find the rows from
the screen side rose from the screen side where people people will both laugh and cry. ठीक है, तो कौन सा रो होगा जिसमें लोग हंसेंगे भी रोएंगे भी? हाँ, हाँ, मैजिक का कमाल है। हाँ, सब मैं दे रहा हूँ। लाफिंग गैस का मोलर मास है 44 इंटू 44 होता है, उसका मोलर मास 44, इसका मोलर मास है 176। टीयर गैस का मोलर मास ले लो 176, लाफिंग गैस का मोलर मास ले लो 44। ये है स्क्रीन साइड, ये है एंट्रेंस साइड। टीयर गैस से 2-3 फॉर्मूला है, नहीं चाहिए टीयर गैस का भी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। टीयर गैस है तो यहाँ पे 176 ले लो, उसका मोलर मास से मतलब है, इसका मोलर मास 44 है। तो यहाँ से हम टीयर, यहाँ से लॉफिंग गैस दे रहे हैं, यहाँ से टीयर गैस दे रहे हैं, तो ये लोग रोएंगे खाली, ठीक है, ये लोग हंसेंगे, हंसते रहेंगे, ये लोग हंसते रहेंगे। एक रो होगा जिसमें दोनों हंसेंगे भी रोएंगे भी, माने हंसते हंसते आंसू निकलेगा, माने हाँ सही है 134। हाँ, ट्राई करो। और कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया है बस। हाँ, 1 मिनट ट्राई करो। हाँ, 134। 134 आ रहा है ना? एज्यूम करो कि टोटल डिस्टेंस 201 है, ये जो है इक्वी डिस्टेंस रोस है, इसको ले लो 201, 201 ले लो। ओके, तो सपोज लॉपिंग गैस ऐसे जाएगा, जहां तक जाएगा लोग हंसते रहेंगे, उसका रोज सब हंसते रहेंगे, हंसते हंसते। यहाँ पे जो टीयर गैस जाएगा वो लोग रोते रहेंगे, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो ये रहेगा, कुछ रो रहेगा जिसमें दो, ये गैस क्या करेगा, जाके इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो जो रो में दोनों गैस मिक्स होगा उस रो में लोग क्या करेंगे, हंसेंगे भी रोएंगे भी। ठीक है, तो सपोज यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, सपोज ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया x। अगर ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेस्ट होगा 201 माइनस एक्स। सही है।
हाँ, क्योंकि साइमल्टेनियसली बोल रहा है ना। अगर दो स्टूडेंट कोई भी एक स्ट्रेट लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे ना। जो जहां पे दोनों मिलेंगे, ये यहाँ से जितना टाइम में आएगा, ये वहां पे उतना टाइम में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम है, मीटिंग टाइम सेम है, तो टाइम इंटरवल सेम ही होगा ना। बोलो। दोनों दोनों का टाइम सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है। अगर दोनों वॉच देखे, हम इतना बजे स्टार्ट करें, हाँ मैं भी इतना बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, अब दोनों मिले जहाँ पे, फिर वॉच देखेंगे तो सेम टाइम होगा ना दोनों में, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम सेम है, तो डिफरेंस इन टाइम सेम ही होगा, दोनों का टाइम सेम होगा। तो अगर दोनों का टाइम सेम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लॉफिंग गैस क्या होगा? इसका डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, इसका डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टीयर गैस क्या होगा? इसका 201 माइनस एक्स बाय टाइम। ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लॉपिंग गैस को हम लोग लेंगे एक्स बाय टाइम। हमें एक्स ही पूछा है, एक्स ही क्वेश्चन में पूछा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टीयर गैस होगा 201 माइनस एक्स बाय टाइम। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लॉपिंग गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टीयर गैस इज इक्वल टू, यहाँ पे मोलर मास ऑफ टीयर गैस बाय मोलर मास ऑफ लॉपिंग गैस। दोनों का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, ये तो डिफ्यूजन ओपन एयर में हो रहा है ना, तो पार्शियल प्रेशर सेम होगा ना। ओपन एयर में एयर का प्रेशर लेंगे, तो जिस एयर में मिक्स हो रहा है एयर का प्रेशर लेंगे, यहाँ तो इफ्यूजन नहीं हो रहा, तो पार्शियल प्रेशर सेम लेंगे। तो ये अगर ऐसा है, तो यहाँ पे आर एल बाई आर टी, ये दोनों को डिवाइड कर दो, तो आर एल बाई आर टी क्या हो रहा है? एक्स बाय 201 माइनस एक्स, टी टी कैंसिल हो गया दोनों के लिए। ठीक है, तो 201 माइनस एक्स टी टी दोनों के लिए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस का मोलर मास कितना है? 176। लॉपिंग गैस का मोलर मास कितना दिया? 44। तो ये 4 हो गया, इसलिए 2 आ गया। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 इंटू 201 माइनस एक्स। तो इसमें x कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 134। 134। हाँ, दोनों पूछ रहा है, मतलब ये जो डिफ्यूजन होगा ना, तो ये इतना तक जाएगा, तो यहाँ तक सब लोग हंसेंगे, यहाँ तक सब लोग रोएंगे। लेकिन इस रो में क्या हो रहा है? दोनों गैस मिक्स हो रहा है। हाँ, तो दोनों गैस की रो में अगर मिक्स होगा, तो यहाँ पे दोनों का मिलन है ना, तो इस पॉइंट में क्या होगा? हाँ, एक ही रो है। तब ठीक है, तब कौन सा रो में बैठोगे बोलो तो? हाँ, सही है, 134 रो में अच्छा है, वहां पे बैठना सही है। यहाँ पे हंसोगे तो फिर हमेशा हंसने से भी पेट दर्द हो जाएगा। हमेशा हमेशा रोओगे तो फिर गला दर्द हो जाएगा। यहाँ बैठने से सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो 130। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ये हो गया ना, सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम में सोचो। योर थिंकिंग हैज पावर। यू हैव टू think deeply, think clearly, then you can solve any question। क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, मैंने एक लाइन में लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है। अब क्वेश्चन में सब चीज क्लियरली गिवन नहीं रहेगा, हिडन रहेगा।
तो क्या करना है, जो चीज गिवन है, जो पूछा है, सबको लिख के सोचने से आ जाएगा आंसर। ओके। ओके। तो प्रैक्टिस करने से होगा, जिनका नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर लो। और जिनका हो रहा है वो लोग पहले से प्रैक्टिस किए थे, नहीं तो उनका ब्रेन शार्प है, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट में बता रहा हूं, एनरिचमेंट फैक्टर और सेपरेशन फैक्टर। और सेपरेशन फैक्टर, ये थोड़ा हाई लेवल है, तो इसको केयरफुली समझना है। ये एक्चुअली ऐसे ही कभी आया नहीं जेई में। ओके। और ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये पढ़ लोगे तो अगर बाई चांस फ्यूचर में क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव एन एडवांटेजेस। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 110% पढ़ाते हैं, 10% एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो सिलेबस में नहीं है। लेकिन 10% एक्स्ट्रा पढ़ने से जेई का क्वेश्चन इजी लगेगा। ओके। अगर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो फिर रैंक पीछे हो जाएगा। तो एनरिचमेंट फैक्टर, सेपरेशन फैक्टर, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। तो है क्या, देखो, अगर हम लोग सीओ गैस लिए, सीओ गैस और N2 गैस लिए, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28, 28। तो दोनों गैस का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो उसको सेपरेशन करना आ, आसान है कि डिफिकल्ट है? बाय बाय डिफिकल्ट। अगर दोनों गैस का अगर मोलर मास डिफरेंट रहेगा तो उनको सेपरेशन करना आसान है, क्योंकि हम डिफ्यूज करेंगे तो, हाँ वो करेंगे लेकिन कम निकलेगा ना। हम लोग क्या करेंगे, जिसका लाइटर गैस है उसका पार्शियल प्रेशर और करेंगे, और मोलिकुलर मास से भी आएगा। तो और आसान है, इसीलिए मैंने पूछा मुश्किल है या आसान है। पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं पूछा मैंने, उसको अलग कर सकते हैं लेकिन उसका सेपरेशन रेट कम होगा। ठीक है। तो अगर मोलर मास डिफरेंट होगा तो सेपरेशन करना आसान है। ठीक है। तो ये जो सेपरेशन करते हैं, तो एक काम करो, दो गैस ले लो। कौन सा गैस लेंगे? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। तो ये दोनों गैस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, तो ये दोनों गैस का सेपरेशन कर सकते हैं। इसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ले लो, नहीं हेक्साफ्लोराइड, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लो। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड वेपर, दोनों का जो भी है इसको सेपरेट कर सकते हैं। यूरेनियम 235 जो है वो फिजनेबल है। यूरेनियम 235 से हम लोग न्यूक्लियर फिजन कर सकते हैं या एटम बम बना सकते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 से नहीं बना सकते। लेकिन नेचर में देखोगे तो यूरेनियम 238 जो है वो अमाउंट है 99.27% है। और यूरेनियम 238 जो है वो नेचर में है 0.72% है। और भी 233 रेस्ट है 0.01। यूरेनियम 233 और रेस्ट सब है 0.01, सब मिला के 100% हो गया। तो नेचर में 238 ज्यादा है, 99% से ज्यादा है। 235 कम है, ये 238 है, ये 235 है। तो जो हमारा जरूरत है जिससे हम एटम बम बना सकते हैं वो नेचर में कम है, 1% से कम है। लेकिन जिससे एटम बम नहीं बना सकते वो नेचर में ज्यादा है। मतलब देखो, दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, जो हमारा काम का चीज है उसको कम दिए। क्यों दिए?
नहीं तो सब लोग एटम बम बना लेंगे। नहीं, सब लोग एटम बम हाँ हाँ। हाँ, नहीं देना चाहिए था, सही है। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये जो अर्थ है कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होगा ना, तो इसीलिए दिया गया। देखो कोई कोई सृष्टि, देखो सृष्टि का आरंभ है तो उसका अंत होगा, तो उसका अंत ह्यूमन से ही होगा। हम लोग ही हमारा अंत करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इसीलिए ये सब दिया है। ये सब नेचर, इसीलिए नेचर में अवेलेबल है कि ताकि इससे अंत हो जाए। क्योंकि देखो ये जो कोरोना वायरस आया ना, इसका जो वैक्सीन है वो अर्थ में ही है, हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे। कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। तो जो भी डिजीज होता है अर्थ में, उसका क्योर, उसका जो भी वैक्सीन, उसका जो भी मेडिसिन इस यहाँ पे ही है, और ढूंढने से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेचर में है 235 कम है। तो अगर कम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसका तो यूज क्या है, इसको हम लोग एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर में यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, इसका जो यूनिट का जो कॉस्ट है कम हो जाएगा। क्योंकि जो थर्मल पावर में हमारे यूनिट में कितना आता है, पर यूनिट 4 to 6 रुपीज आता है। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर का जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसका यूनिट 50 पैसे की 1 रुपी आएगा मैक्सिमम। तो अच्छा है ना। तो गॉड इसको दिए हैं कि तुम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। तो हम लोग क्या किया, अमेरिका क्या किया, एटम बम बना लिया, एटम बम बना के हिरोशिमा नागासाकी में फेंक दिया। तो वो तो गलत है ना। तो इसको तो हमें दिया गया, तुम पावर जनरेट करो। जब तुम्हारा कोल खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारा हाइडल पावर रिसोर्स नहीं रहेगा, तब तुम यूरेनियम से पावर जनरेट करो और अपना लाइफ जियो। लेकिन ह्यूमन बीइंग उसको डिस्ट्रक्टिव यूज में इस्तेमाल कर रहा है। तो जो भी है, तो इसको अगर हम पावर में कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 238 पावर जनरेशन में हेल्प नहीं करता है, 235 ही हेल्प करता है। तो 235 को हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, वो भी एक रिएक्टर है जो 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करता है। ओके, तो प्लूटोनियम 239 जो है वो फिजनेबल न्यूक्लाइड। तो प्लूटोनियम 239 ही यूज हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। यूरेनियम 235 नहीं है, नेचर में बहुत ही कम है। तो इसको यूज किए थे एटम बम में जो 1945 में हुआ था। 45 या 45 ही है ना। तो ये जो है ये भी फिजनेबल है, लेकिन ये भी नेचर में कम है। जो एक्चुअली काम का चीज है 240 नेचर में ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम 238 से कन्वर्ट करके प्लूटोनियम 239 कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब ये दोनों से सेपरेट कैसे करेंगे, ये दोनों से सेपरेट करेंगे तो हम लोग डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से कैसे सेपरेट करेंगे, देखो पहले एक काम करो, इसको एक कंटेनर में रख दो, रख दिए। तो यहाँ पे दो गैस है, तो मान लो मैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ले रहा हूँ, तो दो गैस निकलेगा यहाँ पे, यहाँ से दो गैस निकलेगा। तो दो गैस का प्रेशर सेम रखो या डिफरेंट रखो, वो अपना इच्छा है। तो दोनों गैस में जो लाइटर गैस होगा वो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, वो निकल गया। फिर क्या करो, इसको फिर से इफ्यूजन कर दो, फिर से लाइटर गैस और ज्यादा निकलेगा, फिर से इफ्यूजन करो, फिर लाइटर गैस और निकलेगा और इफ्यूजन करो। ठीक है, ऐसे करते जाओ। तो ये जो इफ्यूजिंग चैम्बर है उसका नंबर बढ़ाओ। समझ में आ रहा है, मतलब एक बार फिल्ट्रेशन हुआ और फिल्ट्रेशन करो और फिल्ट्रेशन करो और फिल्ट्रेशन करो और फिल्ट्रेशन करो। ऐसे बार बार फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, लास्ट में जो आएगा, ओके, लास्ट में क्या होगा, इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होगा, वेरी वेरी हाई देन परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम। होगा कि नहीं, बोलो, टेल मी, टेल मी। नहीं, ड्यूटेरियम थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर उसको बार बार इसको सेपरेशन करोगे बाय इफ्यूजन, तो क्या होगा,
तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है बढ़ जाएगा। उसको हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेंगे, अभी करते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन डेरिवेशन करने से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और अंडरस्टैंडिंग थोरो होगा। ओके, तो पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फाइनल मोल ऑफ H2 divided by final mole of D2 is equal to initial mole of H2 divided by initial mole of D2 into molecular mass of D2 by molecular mass of H2 to the power n। n क्या है? n है नंबर ऑफ इफ्यूजिंग स्टेप्स। नंबर ऑफ इफ्यूजिंग स्टेप्स मतलब ये 4 बार इफ्यूजन कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं, 8 बार कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, वो है n। मतलब फाइनल मोलर रेशियो, इनिशियल मोलर रेशियो इनटू m2 बाई m1 का इंटू m2 बाई m1 जो है m2 बाई m1 टू द पावर n होगा। n इज नंबर ऑफ इफ्यूजिंग स्टेप्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों होगा? एक ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। सपोज इनिशियली हम उसका रेशियो ले रहे हैं 1:1। ठीक है, अगर 1:1 ले रहे हैं तो फाइनल रेशियो क्या होगा? फाइनल रेशियो NH2 डैश में लिया, ND2 डैश लिया, फाइनल रेशियो। इनिशियल रेशियो NH2 बाय ND2 लिया, स्क्वायर रूट ऑफ MD2 बाय द पावर n। तो इसको मैं पुट करता हूं, इनिशियल रेशियो 1:1 है, 1/1। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? D2 का 4 है, H2 का 2 है, टू दी पावर n। सपोज n यहाँ पे क्या हो गया? √2/1 हो गया, टू दी पावर n हो गया। अगर n ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली NH2 डैश जो है फाइनल मोल ऑफ H2 ND2 डैश से ज्यादा होगा। अगर मान लो n हो गया 4, n 4 हो गया तो हमारा NH2 डैश कितना हो रहा है? ND2 डैश इंटू कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। अगर n को हम क्या लेंगे? n को ले लेंगे 20, तो NH2 डैश कितना हो रहा है? ND2 डैश टू दी पावर 10। तो टू दी पावर 10 तो कितना है मैथ्स में जानते हो? 1024, 1000 टाइम्स ज्यादा हो गया। मतलब H2 का परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़ गया ना। तो ये जितने बार इफ्यूजन करोगे उतना परसेंटेज बढ़ते जाएगा।
मतलब क्या हो रहा है, लाइटर गैस बिकम्स रिचर एंड रिचर बाय मोल परसेंटेज then heavier gas. So if you increase number of effusing steps, then lighter gas becomes more rich. So this is called enrichment factor. तो कितने टाइम्स बढ़ेगा? तो यहाँ पे हम इसको, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं इसको समझाने के लिए। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आया, NH2 डैश डिवाइडेड बाय ND2 डैश इज इक्वल टू NH2 by ND2 ये आया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ MD2 by MH2 टू दी पावर n, तो इसको हम लिखेंगे MD2 by MH2, फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ MD2 by MH2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको बार बार n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? अगर n बार इफ्यूजन कर रहे हैं, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं NH2 बाई ND2, तो F टू दी पावर n। तो यहाँ पे F क्या है, इसको MD2 बाई MH2 इसको F बोलते हैं। F को बोलेंगे सेपरेशन फैक्टर। F को क्या बोलेंगे? सेपरेशन फैक्टर। और इसको बोलेंगे एनरिचमेंट फैक्टर। मतलब क्या है? मतलब यह है जितने बार हम इफ्यूज करेंगे लाइटर गैस उतने बार रीच हो जाएगा, उतने बार उसका परसेंटेज बढ़ेगा। और इसका जो एन जितना बढ़ाएंगे, ये जो है इफ्यूजन उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उतना रीच होते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जितना बार हम इफ्यूजन स्टेप्स बढ़ाएंगे उतने बार ज्यादा इफ्यूज होगा, उतने बार ज्यादा इफ्यूज होगा, तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं, बोलो? तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एनरिचमेंट फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो हम उल्टा करेंगे। हम क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये 1:1 है। समझ में आ रहा? हम चाहते हैं ये 1024 टाइम्स 1 हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं? ये हम n जब हम 20 लिए, हमारा 1024 टाइम्स हो गया, 1000 टाइम्स हो गया। हमें मालूम नहीं है कि कितने बार इफ्यूजन करने से ये 1000 टाइम्स होगा। हम जानना चाहते हैं ये 10,000 टाइम्स हो जाए, H2D2 जो रेशियो है ये 10,000 टाइम्स हो जाए, H2 10,000 टाइम्स ऑफ D2 हो जाए। तो उसके लिए कितने बार इफ्यूजन हम करेंगे, अगर वो मालूम हो जाएगा, हम लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज में उतने बार इफ्यूजन का सेटअप अरेंज करेंगे, अरेंज करके फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारा फाइनली उतना रेशियो में आ जाएगा। तो हमें जो रिसर्च वर्क करना है वो हम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अभी अभी हमें क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है। अगर एन कैलकुलेट करना है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं NH2 बाई NH2 डैश बाई ND2 डैश डिवाइडेड बाय, पार्डन, हाँ लॉग लगेगा, इज इक्वल टू, अब M2 बाई M1, कोई बोल रहा था n/2 कर देते हैं, कर दो भाई M2 बाई M1। तो इसको क्या करते हैं, n/2 कर देते हैं, n/2 करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M2 बाई M1 ले लिया मैंने, तो MD2 MH2 लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, D2H2 लिख देता हूँ, D2 बाई H2, इसका स्क्वायर रूट था, पावर हाफ हो गया, टू दी पावर n था, n/2 मैंने कर दिया। ठीक है, अब लॉग लगा लो। अब लॉग लगाओगे तो
एन क्या वैल्यू होगा फाइनल, मेरे को आंसर बताओ। एन इज इक्वल टू व्हाट यूजिंग लॉग, फाइनल आंसर बताओ। क्योंकि ये स्क्वायर रूट था ना, ये था टू द पावर एन था। देखो मैं फिर लिखता हूं इसको, इसको मल्टीप्लाई कर, बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है उसका पावर भर दो। ओके, तो ऐसे लिख दिया ना, तो इसको क्या होगा, एन एच टू बाई एन डी टू, अब एम टू बाई एम वन टू दी पावर एन बाई टू। वो एक लड़का बोल रहा है, उसके उसके लिए मैं डिराइव कर रहा हूँ ये, ठीक है। और किताब में भी दिया है। एस डिवाइडेड बाय लॉग एम एच टू, और टू इधर आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये फाइनल है, मतलब हमें काम से मतलब है। एक्सपेरिमेंट में ये हमारा जो मैनेजर है वो पूछेगा, तुम लोग तो इंजीनियर हो, पूछेगा कितने बार हमें करना है। वो टारगेट दे देगा कि मेरे को ये चाहिए, क्या करना है, कितने बार करना है, ठीक है। बोलोगे 100 टाइम्स इसको इफ्यूजन कराइए और आपको फाइनल रेशियो 10,000:1 मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके उनको बता दो। फिर वो लोग क्या करेंगे, वो apparatus 100 apparatus खरीद के सेटअप अरेंज कर देंगे। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, फाइनल में देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन से वो सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही आएगा तो यू विल बी रिवॉर्डेड, अगर गलत आएगा यू विल बी पनिश्ड। सही है कि नहीं? हाँ, मतलब क्या है, हमें एन का वैल्यू निकालना है। तो जब भी कोई भी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाओगे, तुम लोग आईआईटी से इंजीनियरिंग पास करने से तुम्हारा काम क्या रहेगा, आईआईटी से इंजीनियर जो काम करता है वो लेबोरेटरी में दिमाग वाला ज्यादा काम करता है और मेहनत वाला कम काम करता है। जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जाते हैं वो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, वो इंडस्ट्री में जाएंगे, केमिकल से एक्सपोज होंगे सब सेल। लेकिन जो रहेगा आर&डी डिपार्टमेंट में, वो प्लान करेगा कि ऑपरेटर्स का सेटअप कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फाइनल यील्ड कितना आएगा, उसमें वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, ये करना है, ऐसे करना है। तो उसमें उनको पूछा जाएगा, ठीक है हमें चाहिए कि ये जो गैस का सेपरेशन हम कर रहे हैं उसका रेशियो हमें चाहिए 10,000 टाइम्स/1, ये रेशियो चाहिए। क्योंकि 100% सेपरेशन इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ रहेगा जो हेवियर गैस होगा। पहले कितना था, 1/1 था। तो इतना करने के लिए हमें एन का वैल्यू कितना चाहिए, वो कैलकुलेशन हम लोग करके उनको देंगे, तो वो लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप कराएंगे। तो एन वैल्यू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 10,000/1, तो एन एच टू डैश बाई एन डी टू डैश हो गया 10,000/1 डिवाइडेड बाई एन एच टू बाई एन डी टू 1/1। मतलब जो सोर्स से वो लोग कलेक्ट किए उसमें एच टू डी टू 1/1 है, तो ये 1/1 है, ये 10,000/1 है। तो log d2/h2 जो है, d2 4 h2 2, तो 4/2 log 2 आ गया। तो यहां पे कैलकुलेशन करके n का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसका डेरिवेशन 10 मिनट लगेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ।
वो सेपरेट करना डिफिकल्ट है। अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा सेपरेशन आसान है, नहीं तो डिफिकल्ट है। तो अगर सेपरेशन करना है तो पार्शियल प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा फिर। देखो, हाँ, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल है जिसके लिए जिसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। अगर सेम मॉलिक्यूलर मास है तो ये मेथड और फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तब ऐसे आएगा तो तब बोल दो नहीं 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 ये नहीं होगा, आप करेंगे तो आपका इंडस्ट्री का लॉस हो जाएगा और आपको इंडस्ट्री बेचना पड़ेगा। तो मैनेजर आपको जो डायरेक्टर होगा, जो सीईओ ऑफ द कंपनी होगा, बोलेगा नहीं नहीं इसको मत करो, इसको जो जहां से खरीदते थे उसको वापस भेज दो। ठीक है, तो तब हाइड्रोजन D2 मिला, हाँ हाँ ये कर लीजिए, इसमें आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तो टाइम हो गया। तो क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा अभी, राइट। डिफ्यूजन का क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चंस ट्राई करो। ओके, अच्छा मैं अभी देखता हूँ, अगर है तो एक्टिव कर देता हूँ।